Well, as far as our today's speaker, our chief guest, Shreya Katyal is concerned, she is an advocate, an anchor, an author, public figure, motivational speaker, a journalist in RJ. And talking about her Dil Ki Baat, it is her words, of course. You can find her blogs and her website. Okay, so when I was talking about thinking about Dil Ki Baat, I got to know that she was 7 when she started to pen down her thoughts. I mean, like 7. आज की डेट में अगर 7 साल का बच्चा कुछ ऐसे भारी भरकम बातें करता है, माई रिएक्शन यूज टू बी लाइक कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर मैं बताऊंगी. But after getting to know about her, that she actually started expressing herself at 7, I was like, now I really need to change my thought on that. So when I read her thoughts so deep and strong, I was like, it was too much for me to process itni jaldi. But there was one thing that touched me, and that is when you inspire, you evolve. Such short and simple sentence, but how powerful and deep it is. So I was like, okay, now the interesting part starts. When talking about her journey, she says that it's the up and down, the lows and highs that motivated her to pen down her thoughts, to express it to people, to inspire them, to motivate them. And that is how it helped her for the anchoring part, for interviewing people. She has interviewed artists, she has interviewed politicians, diplomats. That paved the way for her journey towards journalism. As I already mentioned, she's also an RJ. So it's not just her written words, she even verbally motivates people. So, Shreya, I welcome you here, and please enlighten us with your beautiful and strong and deep thoughts. Thank you so much, Sonal, for this amazing introduction, first of all. And thank you once again for inviting me here on this platform to share my views. When I started writing, I was 7. And yes, generally, like you are very correct. I have been hearing this. अभी तो तुम बच्चे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो. कैसे कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? But it is very, very important to understand one thing that पहले सतयुग था, right? At that time, people were too much oriented into spirituality. So सतयुग में तो नेगेटिविटी थी, तो इतना पूजा पाठ था. आज कलयुग में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, तो स्पिरिचुअलिटी गायब हो रही है, जबकि ज्यादा होनी चाहिए. स्पिरिचुअलिटी को अर्लियर यू स्टार्ट इज बेटर, बिकॉज जो चीज कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मती होए सुजान. सो दैट इज द केस. जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे, बचपन में तो खाली स्लेट की तरह होता है बच्चा, वो जल्दी सीख जाता है. बाद में जाके लास्ट स्टेज पे अगर आप राम नाम लेना ट्राई करेंगे, वो नहीं होगा. जल्दी, बल्कि हमें अपने बच्चों को भी ये चीज सिखानी चाहिए. देयर इज नो एज ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल. तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा हुआ आपने इस पॉइंट को पिक करा. And then today we are also talking about the same thing, which is the higher purpose of life. So if we refer to Srimad Bhagavad Gita, we all know this thing that 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, right? So we are not here to, eat, sleep and repeat. That is meant for the animals. We have this life to create something meaningful, purposeful, and add on to this beautiful world which is created by the Almighty. तो दिल की आवाज कहती है, खुद जलकर औरों के जीवन में रोशनी पहुंचानी है. खुद जलकर औरों के जीवन में रोशनी पहुंचानी है. जैसी सूरज की कहानी है, वैसी ही अपनी भी लिखकर दिखानी है. So this is the idea why we have been given a human birth, to help and heal others. हमारी लाइफ में आज कुछ भी एक्सपीरियंस होता है, एक तो मेंटल डिक्शनरी बहुत मैटर करती है. आप या तो उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए उस एक्सपीरियंस को, या फिर आप पेन की तरह लीजिए. इट इज इंटायरली अप टू यू. लास्ट ब्रेथ तक एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस तो होने ही वाले हैं. यू कैन नॉट एवेड इट. सो इट इज योर मेंटल डिक्शनरी. अब अगर आप चैलेंज की तरह लेते हैं, तो आप उससे खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं. और अगर आप पेन की तरह लेते हैं, तो आप, इट्स अ स्लो पॉइजन. आप मरने से पहले मर रहे हैं धीरे धीरे. And then you're missing an opportunity to grow.
If you'll So take this it as a challenge, you'll obviously grow. exactly, If you take it as a pain, it's over. Khatam kahani. Bas you'll cry for that all your life. absolutely. So pain to वैसे भी कहते हैं ना, calmness. I have written this thing that calmness creates clarity. So if you are not calm in your mind, you're taking it as a pain, then you're not learning out of it. And God is giving us every challenge to just learn. It's like a test paper. जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, we are in the first class, we write the exam and we pass it. तब भी हम रोते हैं, अरे एग्जाम है यार, क्यों जाना पड़ रहा है, shit, right? So उसी तरीके से ये जिंदगी है, इसमें हमेशा एक एग्जाम आ रहा है. अब तुम्हें देना तो है ही उसका आंसर, चाहे तुम रो के दे लो या हंस के दे लो, इट इज एंटायरली अप टू यू. जब तक आप अपने फर्स्ट टेस्ट से नहीं सीख रहे हो, एक चैलेंज से नहीं सीख रहे हो, दैट सेम चैलेंज इज गोइंग टू बी रिपीटेड, बिकॉज द आइडिया is to learn no matter what. It is a game. It is a game. You see it as this world as a stage, and it is a game you're learning every time. हम लोग हमेशा ये चीज सुनते आए हैं, लाइफ कोई मैनुअल के साथ नहीं आती है. गॉड नो, लाइफ एक्चुअली मैनुअल के साथ आती है, and that is Srimad Bhagavad Gita. God, Lord Krishna has given you all the answers. The dialogue between Arjuna and Krishna has all the answers which humanity needs to live a stable and spiritual life. अब आपने अगर वो मैनुअल पढ़ी नहीं है, खोली नहीं है, तो उसमें भगवान की क्या गलती है? और कुछ लोग पढ़ के भी उसको झुठलाते हैं, कुछ लोग तो भगवान को भी बस सोसाइटी के प्रेशर के लिए मानते हैं, समझ रहे हो? या अपने हिसाब से होल्ड कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, बट मैं इसका ये मतलब निकालूंगा या निकालूंगी एज फॉर माय कंफर्ट. I realized this at a very early age that दुनिया पूरी अपसाइड डाउन है, full of hypocrisy. I mean, वो चाहते कुछ और है, वो बोलते कुछ और है, वो करते कुछ और है. लाइक महात्मा गांधी सेड दैट जब तक तुम ये तीनों चीजें सिंक में नहीं रखोगे, यू कैन नॉट बी हैप्पी. और फिर उसके बाद कहते हैं, अरे हम खुश क्यों नहीं है? लाइक कि क्या हुआ? मैंने तो सब अपने हिसाब से किया. व्हाई आई एम फीलिंग हॉलो? You are feeling hollow because you are creating a disbalance. आप खुद Right. से ही सच नहीं बोल रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हो, तो आप क्यों टॉक्सिक नहीं होंगे? एंड दीज आर द रीजंस फॉर डिप्रेशन. आपको अपनी रियलिटी को सबसे पहले एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. फिर रोना आ रहा है तो हाँ ठीक है, मुझे आता है रोना, या हंस रहे हो तो हाँ मैं खुश हूं. तो लर्न टू एक्सेप्ट योर रियलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. And we don't need to compare our lives with anybody. We all are different stories. सपने देखो अपनी औकात के हिसाब से नहीं, ऊपर वाले की औकात के हिसाब से, और उसकी औकात जो है ना वो अनलिमिटेड है. So you can achieve any bloody thing. You just need to dream about it and work towards it. There's nothing impossible, nothing. जैसे मैनुअल की बात करी ना, लोग कहते हैं कि मैनुअल नहीं है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. तो आई हैड रिटन दिस थिंग दैट अर्ज किया था, दिल की आवाज कहती है, जिंदगी कोई जंग नहीं, शायद तुम्हें ही जीने का ढंग नहीं. सो यू नीड टू लर्न दिस थिंग. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट अ वेरी strong prominent concept to achieve happiness and your dreams, that is love. Love is the biggest force. The Dalai Lama has also said, all the healers, you know what, when all the healers, love makers and peaceful people, promoters of philosophies are there present, like Kabir, the Dalai Lama is also called a terrorist in China. So they all are rebuked. Jesus Christ was crucified. So जो ऐसी बातें करते हैं ना, उनको दुनिया वाले पागल ही बोलते हैं और जीने ही नहीं देते, क्योंकि हेटरेट के मैसेंजर ज्यादा हैं, ब्लैक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कलयुग है. So the idea is that I would say all the healers, all the lovers, peacemakers should not doubt themselves. My whole family is after me to get married. So whenever I talk to Nupur ma'am, at times I ask her कि ma'am जो मेरे thoughts हैं, या like I follow her whatever she says and so many motivational speakers, मैं बोलती हूँ ऐसा partner मिलेगा ना जो मुझे पागल नहीं समझेगा. I can completely relate to it. And I would suggest you one thing in this case, Sonal, that don't hurry up into marriage. There's no point getting married and getting divorced. It's about anybody who would not connect to your mental faculty. And you will be suffocated. Marriage is not only about living in a system, aaj wo din gaye. We all are independent. We are emotionally independent. We are physically independent, financially independent. We can also adopt babies. You connect to somebody mentally and soulfully. True. Otherwise, that marriage
is not going to work. So don't hurry up into marriage. I would say wait, surrender to the divine and wait for the right time. You would definitely, people like you who think deeply and are sensitive, compassionate, always get their right soulmate, but the time is defined by the Almighty. And True, सारी true. marriages Agree. break ही इसीलिए हो रही हैं that people are not trying to find their soulmate, that magic to happen. शिव और शक्ति का concept है, right? They are incomplete without each other. So वो जो बंदा जो आपका half है, जो ऑलरेडी डिजाइंड है, उसने बर्थ लिया था किसी हायर पर्पस की जब बात आ रही है ना, तो किसी पर्पस के लिए हमारा बर्थ होता है. वी आर हियर टू कंप्लीट अ पर्पस. वो पर्पस इतना छोटा भी हो सकता है कि हमें शायद एक चींटी की हेल्प करनी है, उसको मरने से बचाना है. सो इफ यू know this is your purpose, then somebody half, your other half is already been born with the same purpose. Okay. And why we find a partner is not because we need somebody in life, right? We just need to share our same purpose journey. Life path, yeah. Right. So क्या होता है ना कि कभी कोई वीक पड़ जाता है, किसी की एनर्जी कम हो So the जाती other है. one is there to, yeah, support. Exactly. Yes, और you वो have to कौन go कर with पाएगा? it. कौन कर पाएगा? वो वही बंदा कर पाएगा To जो आपको understand the समझता है. same thing. Right. एग्जैक्टली जो सेम ट्रैक पे है. वरना तो आज मुझे जर्मन आती है, आपको भी शायद आती है, नहीं आती, तो मैं अगर ये लेक्चर जर्मन में बोलने लग जाऊं, यहाँ से निकलेगा ना, सॉफ्टवेयर ही नहीं है अंदर. वो ही सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. अब आपका सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर से मिलता है उसी से शादी करना. वरना तो ना अपना पर्पस कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है, सब कुछ हैसल हो जाएगा. मैं अब सीरियसली बता रही हूँ. I इससे read अच्छा it है सिंगल somewhere रहना. that you should have a partner जिसके साथ आपको अपनी पूरी लाइफ decoding पे ना लगे. To एग्जैक्टली. explain. I would just summarize this in one line. Follow your दिल की आवाज. कुछ भी होगा ना लाइफ में, nobody is going to come and help you. It was your decision and you have to face the repercussions. No father, no mother, no friend, nobody can, even your partner cannot help you if he's the wrong partner. Absolutely. You have to True. suffer the result. So just think before taking. It's a very big decision. तभी तो आजकल मजाक बना हुआ है ना, एक शादी, दो शादी, डाइवोर्स एक हफ्ते में. मतलब शादी होती नहीं है, डाइवोर्स उससे पहले प्लान्ड होता है. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. एंड हम लोगों का कल्चर इज सो डीप रूटेड. वी बिलीव दैट हिंदू मैरिज इज लाइक 7 जन्मों का, 7 जन्म. आज 7 दिन नहीं चलता, 7 महीने नहीं चलता. व्हेन वी टॉक अबाउट लव, सो लव इज द बिगेस्ट फोर्स एंड ट्रू लव इज द बिगेस्ट फोर्स. कहते हैं ना कि इंसान प्यार में अपनी औकात से ज्यादा कर जाता है. सो हायर पर्पस हम सबका, जो गॉड हमसे, लॉर्ड कृष्णा एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज टू बिकम लव. यू शुड बी सो कंपैशनेट कि तुम अगर किसी पानी के ग्लास को भी देख रहे हो ना, तो भी तुम कह रहे हो हाय यार पानी कितना सुंदर है. सुंदर, so So sweet. that kind of compassion you need to build for everything. तुम्हें कोई गाली भी दे रहा है ना, तो तुम मन में कह रहे हो यार कितना दुखी है बेचारा, हे भगवान so इसको sweet. हील करो. So I that can kind of relate. love you need to vibrate, and it is not only beneficial for the other person because you're healing that person, it is also beneficial for you because world is a mirror. आप जो बाहर फेंकेंगे वो वापस आएगा. हो सकता है उस बंदे के थ्रू ना आए क्योंकि वो इतनी नेगेटिविटी में ट्रैप्ड है, बट कहीं और से आएगा. आपको जरूर वापस वो एनर्जी मिलेगी जो आपने कभी दी है. एंड दैट इज ऑल्सो द लॉ ऑफ कार्मा. कार्मा हैज नो सेंटिमेंट्स, इट इज वेरी लॉजिकल. सो कुछ भी करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि यार अगर ऐसा मेरे साथ हो तो कैसा लगेगा. गॉड को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो लवर्स होते हैं, पीस मेकर्स होते हैं. उनकी सारी विशेष भगवान पूरी कर ही देते हैं. और विशेष ना भी पूरी हो, मटेरियल विशेष, तो अंदर से सेटिस्फाइड रहते हैं. बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है. भगवान किसी भी गंदी जगह पे नहीं रह सकते. सो यू हैव टू मेक योर हार्ट वेरी क्लियर एंड फिल्ड विद लव. उसी के अंदर, उस भगवान मूर्ति में नहीं है. इट इज जस्ट उन लोगों के लिए वो चीज है जो उनको इमेजिन या फील नहीं कर पा रहे. और ऐसे सिर्फ 2% लोग हैं इस दुनिया में जो एक्चुअली गॉड की प्रेजेंस फील कर सकते हैं. उन एंजल्स को अपने पास फील कर सकते हैं, वो ठंडी हवाएं फील कर सकते हैं. राइट. सो द आइडिया इज पहले आपको क्लीन होना पड़ेगा.
we just need to meet ourselves, and that was the purpose why I started writing Dil Ki Awaaz, to keep humanity intact. I was very small and I realized कि लोग इतना भाग रहे हैं कि वो भूलते जा रहे हैं इंसानियत. माया के प्रकोप से तो नारद मुनि भी नहीं बच पाए थे. It is so strong. We don't understand what we are doing, but others are understanding how cruel we are. हमें दिख ही नहीं रहा होता कि हम क्या हो गए हैं इंसान से, right? So this was very important and I decided that ठीक है, अगर भगवान ने मुझे अवेयरनेस दी है और मैं इस अवेयरनेस को लेके भी चलने वाली. सत्संग क्या होता है? सत्संग इज नॉट दैट एक दिन आपने पूजा पाठ कर लिया, यू आर हील्ड. इट इज अ एवरीडे प्रैक्टिस, इट्स एवरीडे रिमाइंडर. व्हाई आई एम हियर इज बिकॉज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो शायद मेरी ये वैल्यूज और प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग हो रही हैं आज. हर चीज को बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना लोग एक दूसरे को खा जाएंगे. And my mission is like कलयुग में सतयुग बनाना है. So I'm carrying that light in whatever manner I can help people. I try that. And yeah, it is me, it is Lord Krishna's message. I am just being an instrument. Just that, like something happens and that is Dil Ki Awaaz. I just don't know how the ideas come, how the words come. Right now also I'm not thinking and speaking, it's just coming. What is needed is coming. Live your life like Lord Rama. उन्होंने नहीं कहा मैं भगवान हूं, उनको लोगों ने भगवान बनाया. लॉर्ड कृष्णा, they were doing their duties. तो ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं होती है कि अरे भाई मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना महान हूं, मैं बैठ के लेक्चर्स दूंगा. आपकी जहां जरूरत होगी भगवान आपको वहां पहुंचा देगा. अब आपका टेस्ट ये है कि तब आप अपनी समझदारी दिखाते हो या नहीं दिखाते हो. So this is the thing. People are trying to be very, very, महान. हमने ये करा, हमने इसके लिए वो करा. अरे तुम कौन होते हो करने वाले? तुम खुद के लिए नहीं कर सकते. जो बेसिक ह्यूमैनिटी है वो मिस आउट हो जाता है. यस, एंड जब ये थॉट ही आ जाता है ना कि हमने करा, जीरो हो गया ना. जीरो हो गया. नेकी कर दरिया में डाल. वेयर इज द कंसेप्ट? द आइडिया इज टू गेट लिबरेशन, मोक्ष फ्रॉम द साइकिल ऑफ दिस. दैट इज द हायर पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे. ह्यूमन बर्थ इज गेटिंग रिड ऑफ द साइकिल्स, राइट? अगर आप फर्स्ट क्लास में हो और आप दोबारा फर्स्ट क्लास में हो तो दैट इज द शेम एज अ स्टूडेंट. उसी तरीके से अगर आप बार 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 जन्म लिए जा रहे हो, दैट इज द शेम एज अ सोल. सो आइडिया इज टू गेट मोक्ष. एंड मोक्ष कैसे मिलेगा? बुरे कर्म करोगे तो तुम नरक में जाओगे, वो तो सबको ही पता है. कहते हैं अच्छे कर्म करोगे ना तो भी तुम नरक में ही जाओगे, बस थोड़ी लेट जाओगे. कर्म तो करे ना. नरक क्या है? The setup where you are born is termed as nark only. You are creating it heaven. जैसे अगर आज ये हमारा जीवन है तो this is not heaven. Heaven is something else which is like Lord Krishna's वैकुंठ धाम. That is heaven, जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. ये तो हम कहते हैं कि आपने जो जन्म लिया उसको हेवन आप अपने माइंडसेट से बनाओ, पॉजिटिव रहो, बट अल्टीमेटली तो ये नर्क ही है ना. तो थोड़ी लेट नर्क में जाओगे. यू विल बी बॉर्न अगेन. अब अगर आपको मोक्ष चाहिए, द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज देन फिर क्या करें? कैसे कर्म करें? अच्छे भी ना करें, बुरे भी ना करें. करने हैं कर्म. कर्म तो करने ही है, मगर हरि नाम के कर्म करने हैं. ये चीज हमेशा याद रखनी है कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है. करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट द डूअर. So that is the idea to attain moksha. कहते हैं कि जब हमारी मर्जी से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर जब हमारी मर्जी से नहीं होता कुछ तो उसकी मर्जी से हो रहा है, वो उससे भी बढ़िया है. He is the father, he is the creator and he knows how to run his creation, right? So we should always learn two things which Sai Baba has also taught us, that is Shraddha and Saburi, faith and patience. बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है. उस सरेंडर मोड में आना, देखना कि भगवान हमसे क्या करवा रहा है, क्या करवाना चाहता है, अपनी दिल की आवाज फॉलो करना और उस डायरेक्शन में मूव करना. सरेंडर मीन्स मैं तो कर्म ही नहीं करूंगा. मेरे पास बैग पड़ा है, यहाँ पे मेरी ज्वेलरी पड़ी है, मेरी मेड उठा के लेके जा रही है, मैं कह रही हूँ सरेंडर भाई, मेरी किस्मत में है, मेड ले जा रही है. नो, ओके, यू नीड टू एक्ट लॉजिकली ऑल्सो. Surrender means that,
सीइंग द राइट सिचुएशन, कहाँ बोलना है, किस चीज के अगेंस्ट बोलना है, क्या सही है क्या गलत है, बट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर सकते हम। सरेंडर का ये मतलब है। अपॉर्चुनिटीज तो भगवान देगा। अब जैसे ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, ये मैंने क्रिएट नहीं करी कि आपको कॉल करके बोला अरे प्लीज मुझे इनवाइट करो, प्लीज मुझे बोलना है, नहीं नहीं नहीं। अपॉर्चुनिटी मुझे दी यूनिवर्स ने, आप लोगों ने इनवाइट करा, अब मेरी ड्यूटी है उस पर एक्ट करना, that how I deliver, how I utilize this opportunity in the benefit of everyone. So this is the concept of surrender. कुछ लोग surrender को गलत समझ लेते हैं, वो बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के वो नहीं होता है, फिर वो बहुत चीजें लाइफ में मिस कर देते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज एक ही बार आती हैं, हर चीज का एक टाइम होता है। सो तेरी रजा में राजी। और लास्टली अर्ज क्या है, दिल की आवाज कहती है जो भाग्य में है वो भाग के आएगा। आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी गॉड ने लिखी हुई है। हम सबकी डेस्टिनी लिखी है, कहते हैं ना, लिखा है जो लकीरों में मिलेगा वो तकदीरों में। अब द आइडिया इज दैट जब वो डेस्टिनी रिवील हो रही है, तो आप क्या उसको समझ पा रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उस पर यस बोल रहे हो या नो बोल रहे हो, आपका सिर्फ इतना रोल है। तो जो भाग्य में है वो भाग के आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो मिलकर भी छिन जाएगा। सो जस्ट डोंट वरी, गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट ऑलमाइटी, ही विल। मतलब ऐसे लोग जो उनके ही हेल्प कर रहे हैं, उनके मैसेंजर्स हैं, उनको तो वो कभी हारने नहीं देंगे ना। अगर उनकी हार होगी तो भगवान की हार है, एंड भगवान कभी हार ही नहीं सकते। It's just the challenges. We need to learn from them. We need to imbibe those values which God is, expecting out of us. And if you allow, I would just narrate one poem, which was God's innocent child. And this all talks about opening dil ki awaaz, sharing dil ki awaaz, and whatever we discussed today. So this would summarize all the mentality we are carrying. Please. Okay. Yeah, thank you. So the title is God's innocent child. God's perfect child was born innocent and free. In God's every creation, he had beauty to see. Free from hatred, free from judgments, free from all the negativity. This child was born just to spread some knowledge and enlightenment in each and every city. Carrying love and only love for every being in his heart, spreading smiles and positivity was supposed to be his most pivotal art. God's perfect child with his important mission was on his way. But then he wanted to be intelligent one day. He wanted to explore the world, to become smart, and to understand people's various reactions and varied acts. In the process, he learned many beautiful truths and also many bitter facts. He unraveled that everyone is not so sweet and pure. Everything is not clean and good, and developed his own way of doing what he should not do and what he should. It's a rat race everywhere in the world, he saw, and learned theories like survival of the fittest is nature's law. He got to know that everywhere in this world, first come, first serve is the rule. Person who gives others a chance is the biggest fool. But this God's sweet innocent child forgot to look upon things like all that glitters is not always gold. There's a fine difference between being ruthless and being bold. There has to be evil so that goodness can prove its power. What goes certainly comes around with each passing day and each passing hour. God's innocent child became intelligent, but only by losing his innocence day by day. He started gradually polluting his soul in every possible way. Innocence without intelligence and intelligence without innocence is a sheer waste. When you can keep your sensitivity intact along with being sensible, then only you can have this beautiful life's delicious taste. Every human is beautiful inside. What you have to become, you need to decide. So खाली स्लेट की तरह आते हैं हम, बट देखते हैं इसने चोरी करी मेरे साथ, इसने धोखा करा, अरे मैं भी धोखेबाज बनूंगा। भाई नहीं, जिंदगी की राह में दर्द तो सभी को मिलता है,
मगर इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दर्द पाकर ठान लेते हैं कि पूरी दुनिया को तहस नहस कर देंगे, और दूसरे वो जख्म पाकर प्रण लेते हैं कि जो दर्द उन्हें मिला वो किसी और को नहीं होने दूसरों देंगे। को ना मिले। एंड यू नीड टू बी द सेकेंड कैटेगरी गाइज, यू नीड टू बी द सेकेंड कैटेगरी, अदरवाइज ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये दुनिया हमारी ही है, हमें ही चलानी है। So I rest my case here. Thank you for giving me time to share my views. I want to thank you, Shreya. It was, I really don't have words whether I should say amazing, beautiful. I will say it was seriously heart touching and soul touching. I mean, see, there are certain sessions which is very scripted. There are, again, I will say we should actually give it a name, Dil Ki Awaaz, जो दिल से निकली और दिल तक पहुंची। हम सबके साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग रुककर उसको इतनी डीपली सोच ही नहीं रहे। राइट, भगवान ने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करी है। इट्स नॉट अबाउट श्रेया इज गेटिंग मोर एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटीज। हम लोग भाग रहे हैं एक्सपीरियंस से। अगर आपको पेन भी हो रहा है, आपको चोट भी लग रही है, मैं ऐसी इंसान हूँ, मेरे को लेफ्ट लेग में 92 स्टिचेस लगे, मैं उसको एनालाइज कर रही थी बैठ के, और ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के करवाया मैंने। मेरा पूरा पैर खुल गया था नी के नीचे से। oh my God. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट थोड़ा सा हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा इमोशंस के ऊपर, तभी तो कुछ सीखेंगे ना। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा इमोशनल होने में और इमोशनल फूल होने में ना थोड़ा सा डिफरेंस है बस, एक छोटी सी लाइन का। when I was like, actually, as the session was going on, I really felt your voice, your words, your thoughts, it really needs to, like, reach to so many people. I was bomb, ऐसे फटने का मौका मिलना चाहिए ना। I was like that. So, and then मैं कभी-कभी ना मैम कई बार फटना पड़ता है यार, कई बार तो फटना पड़ता है। और वो फटना सिर्फ दूसरों को ना डराने के लिए होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो ऐसे किसी को हार्म करने के लिए नहीं होता। हम लोग किसी को हार्म कर ही नहीं सकते। expression, sharing what you feel in right way with right words is a blessing, and my dear, you are blessed, and I am blessed that I got this opportunity to attend this session. नहीं, थैंक यू सो मच। लाइफ आप जीते जाइए, क्योंकि हम सब एक स्टोरी है, ठीक है? अपनी बुक लिखते जाइए अपनी लाइफ स्टोरी की। अब उसको जो देख रहा है, उसको जो पढ़ रहा है, उसको जो सुन रहा है, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहा है। ऐसा नहीं है, आप भी एक स्टोरी है। इतनी चीजें मुझे आपसे सीखने के लिए मिल रही है, वो मेरी विजडम है कि मैं क्या सीख रही हूँ। आप इसीलिए बर्थ ले रहे हो ताकि आपकी सोल एलिवेशन हो। आपने लिया बर्थ ह्यूमन फॉर्म में, यहाँ पे आपने सारा कार्मिक एक्सचेंज करा, किसी के साथ बुरा करा, किसी ने आपके साथ बुरा करा, ये सब गेम चली, ठीक है? अब अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपको पॉइंट मिलेगा ना, और अच्छा कब करोगे? जब आपके साथ कोई बुरा करेगा, समझ रहे हो? तो जब कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तब तो आपके पास चांस है, भाई मेरे को पॉइंट बनाना है, अब तो मैं तो और अच्छा करूंगा। उसको इतना रुला दो ना कि वो आपके प्यार से ही, मतलब ऐसे उसको शर्म आ जाए कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, और ये इंसान ऐसे इतना अच्छा हो कैसे सकता है यार। हृदय परिवर्तन, द राम जी कंसेप्ट। राम जी भी तब तक, देखो उन्होंने जिसका वध भी करा ना, जिस राक्षस का भी, उसको भी हाथ जोड़े आगे, और खत्म इसलिए करा क्योंकि वो दुनिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसीलिए नहीं कि राम जी को उससे नफरत हो गई थी। इंटेंट, अगेन आई एम सेइंग, इंटेंशन बिहाइंड योर एक्शन मैटर्स द मोस्ट। इट इज स्ट्रॉन्गर देन द एक्शन। जो आपकी थॉट से कर्मा बन रहा है ना, वो आपकी एक्शन वाले कर्मा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो चीज है, ये तो आपका प्लस पॉइंट है। कोई करो यार बुरा, और लोग बुरे आओ, तभी तो मैं नंबर कमाऊंगा अच्छे, तभी तो मैं और पॉइंट्स लूंगा। बुरे से क्यों बच रहे हो? बुरों के पास जाओ, बल्कि तभी आपका जन्म हुआ है। गेन दैट पॉइंट, यू हैव टू बिकम, एग्जैक्टली, यू हैव टू बिकम दैट लोटस अनटच्ड बाय द फिल्थ। इट इज स्टिल द नेशनल फ्लावर। दिस इज द आइडिया। आपके ऊपर, यही तो मैंने गॉड्स इनोसेंट चाइल्ड में भी बताया ना, आपके ऊपर वो चीजों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। वही आपका टेस्ट है कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितना स्ट्रांग है आपका कैरेक्टर। और यही गेम है, दिस इज द अल्टीमेट गेम।
कहते हैं ना कि Lord Buddha has also said that anger or hatred is that poison which you are drinking and expecting other person to die. Certainly, It's not going to certainly, happen. certainly, certainly. देखो ना, आपको जो भी चीज है, चलो प्यार भी है या नफरत भी है, आप अपने अंदर पहले बना रहे हो उसको, तभी तो दूसरे को दे रहे हो. तो अगर आप बना रहे हो तो आपके अंदर ही तो खत्म हो रहा है कुछ, या कुछ बन रहा है. It is not the other person who's going to be very lovely. It is you who has the power of love. You are love. And same goes with hatred and anger also. आप disbalanced हो, आप frustrated हो, आप में problem है. It starts with you only. दूसरा बंदा तो फिर भी एक बेनिफिट रखता है कि वो एक्सेप्ट करे उस लव को या हेट्रेड को या नहीं. आपके पास कुछ नहीं है. आप लव बना रहे हो तो आप ही लोगे, आप खुश रहोगे. आप हेट्रेड बना रहे हो तो आप ही बीमार होगे, और वो धीरे धीरे जो आपकी इमोशन है वो आपकी मैनिफेस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ योर पिंपल्स, इन द फॉर्म ऑफ योर हेडेक, इन द फॉर्म ऑफ योर एनी डिजीज. It starts from your thoughts and emotion. And then they are manifested in a physical form. So you need to be very careful what you are creating inside you. मेरे पे डिपेंड करता है ना. आज अगर मेरे को किसी ने बुरा सोचा मेरे बारे में, तो प्रोबेबली मैं तो सोच भी नहीं रही कि वो बुरा सोच रहा है. मैं तो फिर भी सोच रहा अरे यार मेरे को कितना प्यार करता है बंदा. राइट. इसको बहुत प्यार है मुझसे. He always thinks about me. Exactly. और जब कोई बुरा सोच रहा होता है ना, you know what, Sonal, I pray to God, भगवान इसको कोई ना कोई अंदर ना प्रॉब्लम है, ये किसी ना किसी चीज से तो दुखी है, प्लीज इसकी प्रॉब्लम ठीक कर If दो. someone is like, even to my friends, I mentioned it, कि if you feel that you are doing nothing and there is someone who's after your life, या directly बोलो या मन में बोलो, love you too baby. यहाँ पे एक छोटा सा टर्म एंड कंडीशन है, that you need to protect yourself also, right? Yeah. You don't need to go and sit with the toxic person and hear that toxicity constantly, because कहते हैं ना संगत का असर, no matter what. आप पे वो सबकॉन्शियस में जाएगा, आपके वो नेगेटिविटी आपकी सबकॉन्शियस में जाएगी. So you can heal through prayers. You can heal through prayers. You can, you know, जितना जिसका हो सके, जितनी लिमिट तक हो सके, एक्शन में भी कर सकते हो उनकी हेल्प, but not at the cost of your own soul. क्योंकि अगर आप खुद डैमेज हो गए तो आप क्या करोगे फिर. पहले मुझे गुस्सा आता था, पता है, जब मैं छोटी थी, मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे गुस्सा आता था कि यार मैं ये बात बोल रही हूँ और ये सामने वाला सुन क्यों नहीं रहा है. ठीक है. बट देन आई रियलाइज कि मुझे उसके बाद मुझे अपने पे गुस्सा आने लग गया कि मैं उसको क्यों प्रेशराइज कर रही हूँ. उसकी तो वो जर्नी और सोल एज ही नहीं है अभी, ये तो टॉर्चर है उसके लिए. इट्स जस्ट लाइक पहली क्लास के बच्चे को तुम ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का बताने लग जाओ, उसका क्या हाल होगा. ब्यूटीफुल थॉट. तो अगर आप एक टीचर भी हैं, आप एक स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, तो भी यू नीड टू सी कि आपका स्टूडेंट किस लेवल पे है, उसको कितना देना है. Very nice thought. So this is your responsibility, not the problem of that person. वो तो नहीं है ना गॉड का मैसेंजर या गाइडिंग एंजल और समथिंग, आप हो. तो ये तो आपको देखना है कि सामने वाला बंदा कितनी डेप्थ तक ले सकता है. सोल एज एंड बॉडी एज अलग होते हैं. बटरफ्लाई को आप पहले ही निकाल दोगे कुकून से तो वो मर जाएगी, वो कैटरपिलर नहीं बनेगी. तो उसको गॉड ब्लेस यू श्रेया, करने दो उसको, उसका टाइम दो. Don't push things for people. It's very important to let them feel their journey. Right. What a session, yeah. I am loving it. Trust me. Thank you, Shreya. Thank you, Sonal. Thank you, Pritam ji. Thank you, all the audience out here, present here. Thank you, Maven team. Thank you, Dr. Shabana. We are so grateful to have you have this platform for all of us to share knowledge, share love, and share everything that is there. So thank you, everyone. Thank you again, Shreya.